discrete random variable using the inverse transformation method. Suppose we wish to generate the value of a discrete random variable x having the probability mass function probability of x equal to xj equal to pj running from 1 to let us infinite, and the sum of pj is equal to 1. So this we have seen that to accomplish that we generate a random variable u that is uniform from 0 1, and we assign the it takes value x0 if u is less than p0, it takes x1 if it is lies between p0 to p0 plus p1, and it takes xj if it is lies between summation I running from 1 to j minus 1 pi to summation I running from 1 to j pj. So this is where we can generate the random variables. Okay. So the algorithm that we have used is generate a random variable u uniform 0 1. If u is less than p0, set x equal to x0 and stop. If u is less than p0 plus p1, set x equal to x1, and likewise you have to generate the random variables. I think this is we have seen. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Last practical. Yes, sir. So in the practicals we have seen, and we will use, and this is the example we have given that if we wish to simulate the random variable x such that p1 equal to zero point 0.2, p2 equal to 0.50, p3 equal to 0.25, and p4 equal to zero point 0.4. That means I takes value 1, 2, 3, 4, and this is the corresponding probability. So what we have done, we have see that generate the random variable if u is less than 0.2, we say that the x equal to 1 if u is less than equal to p1 plus p2 and greater than p1, then we say that it is a second random variable generated, and so on likewise. Okay, so we have to repeat the procedure and then we have to generate the desired random numbers. तो ये जानते हैं उसके लिए आर प्रोग्रामिंग क्या किया था, किसी को याद है? Anybody know how we have wrote the program? Why I'm saying that, because I wish to take one practicals based on the certain information. Today we will talk about the generation of a random number from a Poisson distribution, generation of a random number from a Poisson process, and then we say that we have a some inter-arrival time distribution and we have a some service time distribution. So then we wish to solve the problem of the allocation of the patient to the doctors and how much waiting time is required. Okay. The problem is something like that. If I wish to solve this, how to solve? Simulate a sample of demand. सर Yes. प्रैक्टिकल का टाइटल क्या लेना है? वो अभी लिखता हूँ मैं। अभी आप जनरल बना रहे हैं? हेलो। नहीं सर। हाँ, तो ये पहले थोड़ा हो जाए उसके बाद उसका टाइटल डिफाइन करते हैं।
ठीक है, क्योंकि दो तीन चीज साथ में है. ओके, थैंक्स। Simulate a sample of demands for a month period. Given the daily demand, probability distribution. तो आपको you have given this information, demand D, that is demand in given the D units, it is given in units, and you have given some probability. It is like that. If the demand is 0, what is the probability? Let us say it is 0.01. If demand is 10, what is the probability? It is a 0.2. If demand is 20, what is the probability? It is a 0.15. If demand is 30, what is the probability? It is a 0.5. And if demand is 40, what is the probability? It is a 0.12. And demand is 50, what is the probability? It is a 0.02. If you find out the sum, it is a 1. So it is the problem is given, simulate a sample of size n. ठीक है, sample for demands for a month. तो when it is say demands for a month, इसका मतलब क्या हुआ? 30 days की आपको डिमांड निकालनी है. ठीक है, given the daily demand, तो डिमांड दिया है कि if the demand is 0 unit, what is the probability? The probability is 0.1. If it is 10, what is the probability? 0.20. If it is 20, what is the probability? 0.15. Likewise. And then ask that estimate the daily average demand. So this is the problem is given. How to solve? Anyone suggest me? Yes. Anyone? Actually, the practical title you can give application of generation of discrete random variable from EMF and Poisson process. तो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे. So how to solve this? तो पहला प्रॉब्लम आपका है, दो प्रॉब्लम पूछा है आपको. फर्स्ट इज दैट
simulate a sample of demand for a month. And second is, after simulation, estimate the daily average demand. So first step is say that simulate 30 value of demand using probability of D equal to D is equal to Pj. And second, find out their average. That is, average is equal to D bar, that is summation Di divided by 30. Now the thing is that how to generate this. कैसे करेंगे? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर मैं ये होमवर्क में छोड़ दूंगा. सॉल्व एट होमवर्क चलेगा? No, हम्म no, sir. चलेगा तो जवाब दो ना, आपको पता है इसका मतलब. बोलो कैसे करेंगे? 30 रैंडम नंबर्स पहले जनरेट करेंगे. पहला ये तो क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज दैट solution 1. First, calculate cumulative probability. ठीक है, तो cumulative probability आपने क्या कहा था? F j is equal to summation I equal to 0 to j pi. So calculate the cumulative probability j equal to 0, 1, 2 up to how many we have event? 30. 30. 30. It is 0, so that is the 0, 1, 2, 3, 4 and 5. अपने पास क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, P0 is given 0, P1 that is nothing but 0.2 when j equal to, यहाँ पे 1 equal to 10 है. This is the 20, it is a 0.50, 30 it is a 0.5. So you can also give in this way. If you can say that j takes value if you give in this way 0, 10, 20, 30, 40, 50, because you have given the Pj is equal to, you have given this probability D and PD, that is given. तो D आपके पास 0 है, तो ये probability क्या है? ठीक है, so you can say that this is the D, PD, and then you can have a F cumulative probability. Let us say it is a cumulative. इसको आप F कहते हैं. तो 0, 10, 20, 30, 40, 50. What is the probability? It is 0.01. So what is the cumulative probability? 0.01. What is the probability? It is a 0.2. This is a 0.21. What is this? It is a 0.15. It is a 0.36. What is that? It is a 0.5. It is a 0.86. This is a 0.12.
It is a 0.98. This is a 0.02. This is 1. So after calculating this, you have to generate a random variable u. So what is the next test? Generate u from uniform 0, 1 and check if u is lies between fj minus 1 less than fj, then the required random number is j minus 1 or j, then your d takes value j. ओके वही है ना, सपोज आपने जनरेट किया u and if suppose u is a 0.35, so where the 0.35, it is lies between this to this, so it is here, it is less than or equal to this, that means the d equal to 20 is generated. Similarly, you take the another random numbers and if u is, let us say 0.0 0.2, 0.2 is here, so d is 10 is generated. So likewise you have to repeat this procedure how many times? 30 times, and then you can get the value of d, and after getting the d you just take the average, it is giving the, okay. What is the problem? R has some problem. Getting my point? Yes or no? Yes, sir. So what we do, we try to generate so this is method we would apply if you see this code. Okay, generate the 10 random numbers using this PMF. So we have this. So what we do, we just enter the pi, then we calculate the C, and then we have started the initial probabilities. Let us say it is 0 to P. Okay, generate the uniform random numbers. If then you say that for j equal to 0 to length of p, so that means element. Then if u is greater than pj, what is the p? P is nothing but cumulative probability. Okay. Then and u is less than pj plus 1, then xi equal to j. Okay. And then we have repeated this procedure. So we will use the same code. Generate monthly demand and average demand of product having PMF. D there, that is the 0, 10, 20, 30, 40, 50. And what is the probability? The probability is 0.01, 0.2, 0.15, 5, 0.5, 5, 0.12, 2, and 0.02. So we will just, how many random number we wish to generate? 30. So we will store the demands into the vector D. Let us the probability Pi is given
What is given? It is a 0.01, comma, 0.2, comma, 0.15, comma, 0.5, comma, 0.12, comma, 0.02. So this is given. Now we calculate the cumulative sum. So it is giving the cumulative probability. First value will be 0.01, second is a 0.21, 0.36 likewise. And then because we wish to say that the probability is greater than 0 and less than the P0. So that is how we add the first probability. How many items, how many demands we wish to generate? 30. First we will generate the uniform random numbers U. Okay. And then we will check here from 0 to length P. So how many length, how many elements? It is a, यहाँ पे ये 0 समझेगा? Whether it will understand P0, P1 likewise. So we have run this. Sorry. This is the cumulative probability. So you can see that. Is screen visible? All of Yes, sir. I can increase the font size. Okay, now. Let me write again. So this is the cumulative probability you have. It is 0.01, 0.21, 0.36. Which command we have applied? It is the cumulative sum. And then I have make the P as first probability is a 0. I'm saying that the probability is greater than 0 and less than this. So it should start with 1 because it will not understand. Okay, so I equal to 1, I less than equal to 30. So if I take value, yes, I less than 30, so I will generate one uniform random number. And then I will print so that you can have idea. Then I will compare this uniform with this all possible. J equal to 1. So if U is greater than P1, P1 means it is greater than 0 and J यहाँ पे 1 है तो P2. So whether the U is lies between P1 and P2, that means 0.0 and 0.01. If yes, then which random number is generated? It is generated the J or J plus 1. It is a J plus 1, na? Am I right? सही है ना? Suppose पहले में ही आ गया कि U is lies between P1 and P2. So which random number is generated? तो हम कहते हैं इसके corresponding जो वैल्यू है वही होगा ना. जीरो तो है ही नहीं अपने में, हमने ऐड किया है. ठीक है. And then we'll have a continuation of the loop. So once it is over, so I will add into the D1, D2 likewise. So how many? 30. So let us see what happens. So you can see that first random number is a 0.68. Now 0.68, okay, ज़्यादा जनरेट हो गया. तो 0.68 कहाँ आएगा? 0.68 here आएगा ना. It is greater than 0.36 and less than 0.86. Yes. तो कौन सी आएगी? First value is demand is a 30. So let us check. अच्छा, it has taken the 3.
ओहो, तो हमें तो यहाँ क्या देना पड़ेगा? बोलिए। ये 3 आया, हमें तो 30 चाहिए ना, तो क्या करेंगे? कैन आई एड द एक्स एज सी 0, 10, 20, 30, 40, 50? ठीक है, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स जे प्लस वन। अब जे प्लस वन आया तो जे इक्वल टू क्या है? वन से शुरू किया तो जे वन, तो अपना तो यहाँ पे रिजल्ट गलत नहीं हो गया? पर ये है 0.12 है ना, 0.12 है, तो 0.12 कहाँ आया? यहाँ पे। ठीक है, तो 0.12 यहाँ आया, तो क्या आएगा? इट शुड बी ए 10। 10 मतलब कौन सी पोजीशन आएगी? 3 कैसे आ गया? 20 आ रहा है यहाँ, कुछ गड़बड़ है? यस सर। इट इज नॉट जनरेटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी? तो यहाँ गड़बड़ हो गई ना, यहाँ लेंथ ऑफ पी हम क्या ले रहे हैं? 1 से ले रहे हैं, तो 0 लिया तो क्या हो रहा है? लेंथ ऑफ पी, पी क्या है यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ? 7 है। ठीक है, लेकिन तो एक्चुअली तो हमारे पास 6 है ना। फिक्स है सर, तो वन हाँ, से ले लेकिन हमने सकते। 0 आगे ऐड किया ना, इसलिए। ओके तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? 0 से शुरू होगा। तो अगर जीरो से वर्क हो रहा है तो हम लोग P-1 कर सकते हैं, फिर वन से कर रहे हैं तो। तो देखते हैं वेदर इट विल वर्क फॉर 0। ना बोल रहा है, क्योंकि पी में तो है, तो इट विल स्टार्ट विथ P1। ठीक है, तो यस यहाँ पे 1 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? लेंथ ऑफ P-1 तो भी गड़बड़ हो जाएगा। सर, P-1 पे करेंगे तो 6 हो जाएंगे ना। हम्म? 1 to 6 रन करना है ना सर अपने इनको। 1 to 6, लेकिन वो 0, यहाँ P1 0 है, तो ये कहाँ तक जाएगा? सर P-1 तक। P-1 करेंगे तो 6 पे आ जाएगा ना सर। P-1 नहीं कर सकते, लेंथ करके अब -1 करते हैं। ठीक है, हाँ चलो ऐसा। अभी वेरीफाई करते हैं। प्रैक्टिकल में यही तो सीखने का है। और ये प्रिंट इसलिए देने का, वाई वी रिक्वायर टू गिव प्रिंट, सो दैट वी कैन वेरीफाई। अदरवाइज हम समझे कंप्यूटर ने जो दिया सब सही है। हाँ? अब देखो ये क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर इज 0.51। 0.51 अपने हिसाब से क्या आना चाहिए? 0.51 is here, so it is giving the 30. So let us see what is the value in the D. ये 40 आ रहा है, तो भी गड़बड़ हो रहा है ना। NA भी आ गया। बोलिए क्या गड़बड़ है इसमें? लिया तो क्या हो रहा है? Let me just first take the 5. We'll verify. Then we will see what happens.
0.39. 0.39, according to that, what should be the answer? It should be here, so it should be giving the 30. Why it is giving 40? Because we have taken here it is a j plus 1. And that we have to take j. Okay. Because u is greater than pj, na? Less than pj minus 1. Now it is fine. 37. 37 is here. Okay? It is Yes. 30. It is a 0.74 last. 0.74 is here. So it is giving the 30 answer. It is giving 30. Okay? Now we will generate the 30. Sir, it is all are given 30. Eh? N equal to 30 there है ना अभी. This is just to verify whether we are getting the answer correct or not. अब यहाँ पे पहला कौन सा है 0.23. तो 0.23 कहाँ आएगा यहाँ पे? 20. It is 21. 20. फिर कौन सा है 0.66 कहाँ आएगा? यहाँ पे it should give 30. 30. So let us verify. Okay, 20, 30. Okay. And then d bar is equal to mean of average demand is why d bar not found. So on average demand is at 25. So for example, if you talk about let us say the number of a fruit seller is selling the fruits. A petrol pump is selling the petrol. So per day, how many liters of the petrol he is selling, and he has some probability distribution. So on average, how much amount of the petrols he has to keep with that. Same, you can say that suppose in ATM machine, what is the average days? What is the everyday transaction? So whether the transaction is lies between the 20 to 30,000, so what is their probability? So if you have a such probability distribution, you can identify what is the average demand. Getting my point? Hello. Yes, sir. So this will be helpful to take the decision. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, let me give another example. Simulate a dentist clinic phenomenon and estimate average waiting time. The similar things, but what happened? We have given the service distribution. So what is given? The service time distribution
and arrival times as per the appointment times are as follows. So what happened? It is a problem of a dentist clinic. A dentist who is taking care of your tooth, and if you have some problem at your tooth, so you are definitely visiting the dentist. And I wish to see that when you go to the dentist, sometimes you can see that there is a queue. So I wish to see that what is the average time of waiting of a patient in that queue system. Okay, so that I wish to find out. So why the queue? So if you know that the service time is higher than the arrival time, then what happens? Of course, there is a queue. If the customers are coming very fast, okay, but the service is slow, it means that it will take more time to serve the patient. Then what happens? Of course, there will be a queue. I wish to identify. Of course, when you visit the doctors, especially dentists, there are different problem you are visiting. So they have the various kind of the service and the distributions are given. So what is given? Service time distribution. It is given. So there are various types of the service they are giving. So service category is there. Time is given in minute and the corresponding probability is given. Probability to serve the patient. So category is that suppose you can say that service is a filling of there is a problem in the tooth, okay, and if it is of a problem in the tooth, then of course you have to have some filling process. So filling of a tooth, it will require the 45 minutes. And what is the probability? 0.4. It means 40% of the patients visit the doctor dentist for the Teeth filling. filling of tooth, okay. Yes, sir. Then there is another, it is a crown. So 60 minutes is required to crown the tooth. What is the probability? The probability is a 0.15. That means 15% of the people come to dentist for the crown of tooth. Then there is a one more service. They have a cleaning. So cleaning require 15 minutes. And again, you said that the 15% of the people who visit the dentist, they can go for the clinic. Cleaning teeth, then extraction. It is a 45 minutes is required. The probability is 1 to 1. And checkup. मेरे दांत में दर्द है तो मैं चेकअप के लिए चला गया तो 15 minutes is required and the probability is 0.2. So this is giving the service time distribution. Okay. Arrival time क्या है? Appointment based पे. It is saying that arrival time as per appointment. So there is appointments time. One arrival every half an hour
during 8 a.m. to 11:30 a.m. Okay. So how many events are there? One arrival every half an hour. And then, of course, there is a break in the clinic. Then the second arrival is from 5 p.m. to 7:30 p.m. Okay, तो अराइवल एट दी हाफ एन आवर. तो पहला बंदा 8 बजे आया तो दूसरा कब आएगा? 8:30 को. तो 8 से 11:30 में कितने इवेंट्स हुई? हाउ मेनी अराइवल्स कैन बी पॉसिबल? बोलो. 8 बजे एक बंदा आ गया, 8:30 को आएगा, 9, 7 या 8? कौन होगा? 8 तो आप गिना ही नहीं आपने. तो 8 to 11:30 का आपने क्या कर डिफरेंस ले लिया, 3 घंटे का डिफरेंस, 3.5 तो 7. लेकिन 8 बजे आएगा ना एक बंदा, तो टोटल कितने हुए? 8 हुए ना. और यहाँ पे कितने हो गए? 5 से 7:30. व्हाट इज द टाइम? कितने इवेंट होगी इसमें? बोलो. 6 सर. इसमें 6 होगी ना. तो आपको क्वेश्चन पूछा है वेटिंग टाइम का. ओके, तो हाउ विल यू फाइंड आउट द वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम इक्वल टू डिपार्चर टाइम. ऐसा है ना. व्हाट इज वेटिंग टाइम? बोलिए. डिपार्चर माइनस अराइवल वेटिंग हुआ ना कि नहीं? Yes, sir. It is a departure minus Arrival time. patience. Oh, patience departure time minus arrival time. Okay. So what we have given? We have given the first. It is saying that simulate. So you have given the arrival times. ठीक है. फिर आपके पास क्या रहेगा? सर्विस टाइम. और वेटिंग क्या है? डिपार्चर टाइम माइनस अराइवल टाइम. और मुझे इसका एवरेज फाइंड करना है. तो यहाँ पे सर्विस टाइम इज विद द डिस्ट्रीब्यूशन, अराइवल टाइम इज फिक्स. तो पहला बंदा 8 बजे आएगा, दूसरा कब आएगा? 8:30 को, तीसरा 9, चौथा 9:30, देन 10. अराइवल टाइम इज फिक्स ना, एवरी हाफ एन आवर दी वन अराइवल. 10:30, 11, 11:30. ओके. तो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. फिर 9th अराइवल कब होगा? 5 PM. 5 PM. ठीक है. फिर 10th कब होगा? 5:30. 11th कब होगा? 6.
12 कब होगा? 6:30 इज ऑल PM. 13 कब हुआ? 7. एंड 14 कब हुआ? 7:30. 7:30. तो 8 ने 6, 14 हुआ. नाउ सर्विस टाइम वी डोंट नो व्हाट इज द सर्विस टाइम. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यू हैव टू सिमुलेट. हाउ टू सिमुलेट? हाउ मेनी यू हैव टू सिमुलेट? जितने अराइवल है उस सबको सर्व तो करना है. तो 14 रैंडम नंबर्स यू हैव टू सिमुलेट using this service distribution. So earlier practicals we have similarly we have calculated the demand. So similarly we have to first calculate the categories. The first category is a filling, second category is a crown, third is this, fourth is this, and fifth. So 1, 2, 3, 4, 5, and corresponding times are given. Okay. So what is the departure time? तो सर्विस टाइम इज दैट, लेट अस से इसको आप कहते हैं इट इज ए 0. इनिशियली बंदा आया तो अराइव हुआ तो टाइम इज 0. दिस इज द 30 मिनट्स. देन नेक्स्ट बंदा कब आएगा? 60 मिनट्स को. देन 90, 120, देन 150. एम आई राइट? 180 minutes. These all are in the minutes. Yes. Then this is a 210, 240. So it is a cumulative minute. Then it is a 270, 300 minute, 330, and 360 minutes. So this is the cumulative minutes are there. Suppose the first person you randomly selected, and that gentleman go for the crown. So how much require time? It is a 60 minute. So this departure is from 60. So second patient जो आएगा उसका waiting time क्या हो गया? क्या होगा waiting time? इसका तो वेटिंग टाइम पहले का 0 है ना, क्योंकि उसको तो वेट नहीं करना, इमीडिएटली सर्विस मिल गई. Yes. तो वेटिंग टाइम कहाँ आएगा? यहाँ पे. तो डिपार्चर पहला हुआ और दूसरा आया 30 मिनट्स में. तो दैट मीन्स माइनस इट इज ए 30 मिनट द इंडिविजुअल हैज टू वेट. ठीक है. फिर दूसरे का सर्विस टाइम क्या हुआ? सपोज की सेकेंड इवेंट इज लेट अस से फिलिंग. सेकेंड पेशेंट आया, उसका आपका रैंडमली वो फिलिंग करवा रहा है. फिलिंग करवाने में कितना है उसको टाइम? 45 मिनट. तो 45 यहाँ पे सर्विस टाइम कितना है? ये आपका जो इवेंट है सर्विस टाइम कितना है? कितना है इसका? 45. लेकिन टोटल टाइम कितना हुआ उसका? 60 plus 45. 45. That is 105. So this gentleman, उसका कितना होगा वेटिंग टाइम? It is 105 minus 60 इसका, क्योंकि 60 वो अभी आ रहा है. ठीक है. तो लेकिन उसको 105 में से 60 माइनस करो तो कितना वेट है? 45. तो लाइकवाइज आपको हर एक का वेटिंग टाइम निकालना है. देन यू कैन say that what is the average time of a waiting time of a patient. Is that clear? Yes. थर्ड पेशेंट आया आपके पास. थर्ड पेशेंट बोले कि नहीं, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द चेकअप. ठीक है. तो चेकअप का टाइम क्या हुआ? 15 मिनट. तो थर्ड पेशेंट है जिसको सर्व करने के लिए आपको कितना लग रहा है? 15 मिनट. लेकिन ऑलरेडी क्या है, ये 105 तो है, क्योंकि डॉक्टर तो इतना बिजी है. तो कब तक है डॉक्टर फ्री होगा? 120 मिनट को. अब 120 मिनट है, लेकिन ये पेशेंट आएगा कब? 90 मिनट पे. तो माइनस 90, so that is the 30 minutes. So this is where you have to find out the waiting time. And suppose how many patients? So we have a total
14 patient. So you just find out the sum of waiting time and then average out. हेलो Okay? सर Yes. सर सर्विस टाइम और वेटिंग टाइम फिर से समझा दीजिए कौन सा? सर्विस टाइम और वेटिंग टाइम सर्विस टाइम यहाँ पे भी सर्विस टाइम में भी आपको जैसे ये अराइवल टाइम में आपने क्यूमुलेटिव किया है वैसे सर्विस में भी क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा ना। पहले पेशेंट को सर्व किया, उसके बाद दूसरों को किया, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 2 को पेशेंट सर्व करने में 105 मिनट। फिर 3 पेशेंट आपके पास है तो इसको 15 मिनट है, तो टोटल कितना हो? 105 प्लस 15, दैट इज द 120 मिनट्स। ओके। सिमिलरली चौथी सर्विस है, हम तो नहीं बता रहे हैं, रैंडम नंबर जनरेशन से आया, आपका आया सर्विस टाइम क्लीनिंग का। कि चौथा पेशेंट आया आपके पास, वो क्या कहते हैं मुझे क्लीनिंग करना है, तो डॉक्टर्स को कितना टाइम लगता है? इट रिक्वायर द 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट्स है, तो डॉक्टर तो अभी फ्री नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 15 मिनट उसको लगेगा। चौथा पेशेंट आया, वो किसके लिए है? चेकअप के लिए। यहाँ पे हम इसको कहेंगे कैटेगरी है, पहला है क्राउन, ये कैटेगरी। सेकेंड आया फिलिंग के लिए, थर्ड आया चेकअप, फोर्थ आया क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के लिए कितना है? 15 मिनट। बट डॉक्टर तो यहाँ बिजी है, तो उसको एडिशनल कितना टाइम चाहिए इसको सर्व करने में? 120 प्लस 15, तो डॉक्टर यहाँ पे 135 को फ्री होगा। लेकिन आपने इसको कब बुलाया? 90 मिनट, कब बुलाया? 120 मिनट्स को, ठीक है, क्योंकि चौथा पेशेंट। ओके, यस सर। तो ये टाइम क्या हुआ? 135 135 माइनस माइनस 120, 15 मिनट्स। 15 मिनट, तो उसको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर तो अल्टीमेट व्हाई आई एम मेकिंग द सम ऑफ द टाइम, एक्चुअली ये हुआ मेरा, what is the how many events is happen between the time 0 to t1, so that is the only one event happen. What is the how many event is happen between 0 to t1 plus t2, so there are 2 event। ठीक है, ये 2 पेशेंट आ गए ना, ठीक है। फिर how many events are happen between t1 t2 and t3, so that is the sum, so that is called the ये थर्ड इवेंट, 3 इवेंट। तो इसको हमने आपने देखा होगा तो हमने कहा होगा एस इज नथिंग बट इट इज ए सम ऑफ द इवेंट। तो S1 दैट मीन्स द हाउ मेनी इवेंट्स आर हैपन बिटवीन द टाइम इंटरवल 0 टू t1। तो इसलिए आप S2 क्या है? व्हाट इज हाउ मेनी इवेंट्स आर हैपन बिटवीन 0 टू t1 प्लस t2। ठीक है, तो आपने एस आई को कुछ ऐसे, एस जे को ऐसे किया, एस जे इज नथिंग बट, और एस टी टाइम टोटल टी टाइम तक इवेंट जब बनी वो आई इक्वल टू 0 टू टी, एंड इट इज ए, इसको अगर हम कैपिटल टी लिखते हैं, ठीक है, इट इज ए स्मॉल टी आई। तो ये क्या हो गया? एस टी इज इक्वल टू T0 प्लस T1 प्लस T2 प्लस टी कैपिटल टी। तो टोटल टी टाइम में आ गया। इसको एक्स आई कहो टाइम की जगह, टाइम T1 की जगह पे, इफ यू से इट इज एक्स आई, तो ये आप क्या करो, इट इज x0 x1 प्लस अप टू xt। ओके, तो हाउ मेनी इवेंट्स आर हैपन? दिस इज द फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट लाइकवाइज। तो टोटल इवेंट कितनी बनी एस टी में, एस कैपिटल टी में टी, क्योंकि every only one event is happening at each interval। तो कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी इज नथिंग बट दी 0 टू, हर एक का सम तक गए ना आप, गेटिंग माय पॉइंट?
0 to capital T. तो एक्चुअल कैपिटल T क्या है? कैपिटल T इज नथिंग बट समेशन I equal to 0 to T. Okay. It is the time interval. टाइम आप बताते हो तो इसी जैसे हमने लिया था 8 to 11:30, तो 11:30 मतलब कहाँ तक आया? यहाँ तक। तो यहाँ तक कितनी मिनट्स हुई? 0, 30, 60, 90, तो 180, तो 18, तो ये हो गया आपका कैपिटल T। लेकिन हमारे में क्या है, बीच में ब्रेक देने के बाद हम 5 बजे शुरू कर रहे हैं, तो हमारा कैपिटल T क्या हुआ? 360 मिनट। तो 0 to 360 मिनट्स के अंदर कितनी इवेंट्स बनी? तो दैट इज नथिंग बट दी 14 इवेंट्स। और इसलिए जब आप पोजीशन प्रोसेस में जा रहे हो तो n कैपिटल T is nothing but the number of events happen into the time interval 0 to capital T, and that is the 14. So how many customers arrived between the time interval 0 to 360? It is a 14. So that is the arrival time. Similarly आपने departure time भी position है, तो waiting time क्या हो गया? Inter arrival is a exponential, तो waiting time is a गामा डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अभी हम कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे। वी आर सिंपली गिवन दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम एंड अराइवल टाइम इज फिक्स। एवरी हाफ एन आवर आई एम गिविंग द अपॉइंटमेंट, so I wish to find out what is the average time of the patient who is visiting the dentist. So should I change my arrival appointment time? Getting my point? अगर पेशेंट को 1-1 घंटा बैठना पड़ेगा तो क्या करेगा? भाग जाएगा ना। तो आपको आपका जो अपॉइंटमेंट टाइम कैसे देना है कि उसको मिनिमम वेट करना पड़े और इमीडिएटली यू कैन सर्व। ठीक है। यस तो अभी इसका प्रोग्राम कैसे लिखे? हाउ विल यू राइट द प्रोग्राम? इट मीन्स दैट फर्स्ट वी हैव टू जनरेट द 14 टाइम फॉर दिस सर्विस। ओके, और उसका मुझे क्यूमुलेटिव सम फाइंड करना पड़ेगा। एम आई राइट? और अराइवल का मुझे क्या देना पड़ेगा? सम देने का पड़ेगा 0 to 360, और हर एक का टाइम आएगा, इट इज एड बाय दी 30 मिनट्स। और फिर मुझे सर्विस टाइम का जो है क्यूमुलेटिव, उसमें से अराइवल टाइम का क्यूमुलेटिव माइनस करूंगा, तो दैट इज गिविंग मी दी एक्चुअल वेटिंग टाइम ऑफ द पेशेंट। एम आई राइट? यस और नॉट? यस लगता बड़ा सिंपल है, लेकिन अब इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Simulate service time of dentist and obtain waiting time of patient. इसको बंद कर देता हूँ, Sorry. बाद में इसको करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए? See, this is a practical. This is not the theory lecture I am taking. The practical में you have to answer. यस So, how many events are there? 14 events. That means we have to generate the 14. रैंडम नंबर ठीक है, फ्रॉम सर्विस टाइम। तो पहले हम सर्विस टाइम की पूरी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द पी इज गिवन? रोल टी आई। पी क्या दिया है हमें? इज 0.4 कॉमा 0.15 कॉमा 0.15 कॉमा 0.1 कॉमा 0.2। पॉइंट 2 ओके, लेकिन वो जो प्रोबेबिलिटी दी है उसके करस्पॉन्डिंग
कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी फीलिंग है। तो डबल कोट में देंगे फिलिंग। सेकेंड कैटेगरी इज क्राउन। क्राउन। थर्ड कैटेगरी इज प्लेन। क्लीन। फोर्थ इज एक्सट्रैक्शन। फोर्थ इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन। फिफ्थ इज चेकअप। चेकअप। ठीक है। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड? सर्विस टाइम। ओके। S dot time. Service time required is 45, 5 minutes for the filling, 60 minutes. for crown, 15 minutes for cleaning, 45 minutes for extraction, and 15 minutes for checkup. Checkup. Okay? And this is the corresponding probability. So what we do? We first find out the cumulative probability. P is equal to cumulative sum of this pi, and इनिशियल प्रोबेबिलिटी इज हमें 0.4 दिया है, लेकिन हमें कंपेयर करना है लूप में, तो पहली प्रोबेबिलिटी हम क्या लेते हैं? 0, एंड देन ऐड करते हैं बाकी का जो क्यूमुलेटिव है वो। तो नाउ अब यहाँ पे ठीक है, वाइल इक्वल टू हम क्या करेंगे? 1 while I less than equal to how many events you wish to generate? 14. तो n equal to 14 ऑलरेडी हमने दिया है. What we do? We will generate one uniform random number. You can give the print so that you can have the idea whether number is 100 or not. Then you can use, because you have to compare all with all possible cumulative probabilities, na? So you can say that for j in 1 to 1 to length of length of p. P. Okay? और उसमें हम क्या लिखेंगे? If क्या करेंगे? If u is greater than p of j, and if u is less than p of j plus 1, तो क्या करेंगे? What we do? यहाँ पे क्या करेंगे? एक कैटेगरी तो बनाना भूल गए हम, अराइवल टाइम, और ये क्या कहेंगे? डिपार्चर टाइम। सर्विस टाइम तो दिया है. What we do? एस टाइम देते हैं ना. एस टाइम की जगह पे क्या देते हैं? सर्विस टाइम, एस टी, टी ऑफ वेक्टर ऑफ न्यूमरिक. अच्छा, क्या करना है? क्या करना है? इट इज अ वेक्टर ऑफ न्यूमरिक. अब बराबर है. लेट अस सी व्हाट वी डू. एस टी हमारा पहला जनरेट होगा 5, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट इज सर्विस टाइम आपको दिया है. कौन सा आएगा? क्या आएगा बताइए? बोलते ही नहीं आप तो.
जे था ना, ओके। और उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक और फॉर लूप लगाते हैं। हमें कैटेगरी भी चाहिए ना, कौन सी कैटेगरी है? क्या करेंगे इस कैटेगरी, उसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ऐसा? वेक्टर ऑफ क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग, मुझे नहीं पता है, स्ट्रिंग रहेगा सर। देखते हैं। हम्म, एरर देगा तो चेंज करेंगे। SCI में भी क्या करेंगे हम उस टाइम पे, कैटेगरी कैटेगरी में क्या करेंगे, ही देंगे ना, ठीक है। कैटेगरी इज अ वेक्टर, लेट अस सी व्हाट हैपन। तो होने के बाद हम क्या करेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1, और ये हो गई लूप खत्म। उसके बाद ST प्रिंट करेंगे, SC प्रिंट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेट अस सी whether it is working or not। स्ट्रिंग में गड़बड़ है तो क्या देना पड़ेगा? कैरेक्टर दे सकते हैं सर। हम्म? रन करो तो क्या होगा, एट्रीब्यूट भी नहीं दे रहा है। तो कैरेक्टर ट्राई कर सकते। तो कैरेक्टर देते हैं। कैरेक्टर काम कर रहा है, गुड। तो दिस इज पाई, दिस इज दिस, यू आ गया 0.36। हमने पी तो प्रिंट किया ही नहीं ना, तो पी प्रिंट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना क्या है 0.36। तो 0.36 कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो दैट मीन्स दी जे इक्वल टू आपका क्या है 2। तो जे इक्वल टू 2 दिए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये ग्रेटर देन है एंड लेस देन दिस, तो इट इज ए 1, 1 से ज़्यादा है एंड 2 से कम है, तो जे इक्वल टू 2। तो इसमें यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो P2 इज 0.40, ओके। तो व्हाट इज दी P, तो गड़बड़ आ रहा है। सी क्लीन अप चेकअप, तो ये क्यों हुआ ऐसा? 0.4, 0.4 आपका प्रोबेबिलिटी है, तो क्या आएगा 0.4, इट इज ए 45 मिनट्स ना, 45 आंसर आना चाहिए ना, सही है ना। यस सर। तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्यों ऐसा है? कहीं गड़बड़ की हमने, जे 1 तो यार इस टाइम में है ही नहीं। ओके, ये स्ट्रीम में क्या है, इतना है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जे ले रहे हैं। जे क्या है 1 से दिस, तो हमने उसको P-1 किया था, यहाँ पे आगे नहीं किया था, यहाँ पे आ रहा यस था। सर। यस सर। एक जे में 0 ऐड किया तो 0 था इसलिए उधर, तो यहाँ तो 0 है ही नहीं अपने पास। तो एक्चुअली तो ये एस जे तो एस जे तो 1 हो गया ना, तो एक्चुअली ये J+1 होना चाहिए। हम्म?
J+1 में सपोज ये P हो गया, कितना है लेंथ ऑफ P? 14 होगा सर। फिक्स है, जबकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है पाई की? और इसके पाई है। तो यहाँ पे आप J कितना है 6, तो ये U6 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। तो ऐसा तो है ही नहीं अपने पास। तो इसको -1 करके देखते हैं, इसमें ट्राई करते हैं P-1 करके। देखते हैं, चलो। लेकिन U-1 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर 2 से देते हैं। अभी वर्क करेगा। पॉइंट 64 कहाँ आएगा? तो यहाँ पे इसका मतलब 1 2 3, तो थर्ड सर्विस अपनी कौन सी है? क्लीनिंग। तो क्लीनिंग मतलब अंदर आंसर आना चाहिए पहले में। 45 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है ना? हेलो सर। हम्म सर इधर जो प्रोग्रामिंग की है हमने, इफ में जब u लेस देन p किया है तो स्मॉल u लिया है आपने है हाँ इधर सर। क्या? सर, इफ एंड इसकी कंडीशन में इफ की कंडीशन में जो लिया है एंड के बाद जो u लिया है ना, तो स्मॉल u लिया है आपने शायद। अच्छा, यार वो यू कौन कहाँ से लेके आ रहा है? अपनी जेब से ला रहा है क्या? हाँ, नहीं क्या है ये तो सर अपना स्मॉल और कैरेक्टर सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसमें। अपना पुराना देखते हैं फिर से। यस। पॉइंट 53 कहाँ है? यहाँ पे। तो u इक्वल टू ये जो है सेकंड कैटेगरी आनी चाहिए। सेकंड कैटेगरी मतलब 60। 60। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। आ गया। ओके, तो कितना है? 0.29। तो मतलब वो बराबर था, वो यू के हिसाब से बताऊँ होगा। यस सर। 0.29 क्या है? तो वो आएगा 0.40 के अंदर। 0.40 इसका मतलब है कि वो 45 मिनट्स है यस सर। फिलिंग। ठीक है। फिर एक्सट्रैक्शन में भी है, हम ना नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी जा रही है? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ये 0.8 यहाँ आएगा। ठीक है, 0.7 के ऊपर ये 0.78, मतलब 1 2 3 4, तो दैट इज यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4, तो कौन सा आएगा? 1 45 2 3 4, तो एक्सट्रैक्शन 45 मिनट है। 1 2 3 4, हाँ। ओके, नाउ वी आर गेटिंग। अब ये कैटेगरी भी वेरीफाई कर लेते हैं ना, आ गया ना। फर्स्ट यस इज सर। अकाउंट, सेकंड इज फिलिंग, क्लीन, एक्सट्रैक्शन। वाह वाह, क्या बात है। तो व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम? अभी कहाँ निकाला? अभी तो अराइवल टाइम भी बाकी है। व्हाट इज द अराइवल टाइम? अराइवल टाइम कितना है? इट इज ए सी। कौन सा है? नो, इट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 0 टू कहाँ तक है? 360 तक है बाय। यस सर। देखते हैं इसका क्या आता है। अराइवल टाइम तो कितने हैं? ये 10 11 12 13 हुआ ना, तो गड़बड़ है ना। हम खा गए। 390 तक जाएगा इसका मतलब। सर 390 तक जाएगा। भूख लगी हमें। हालांकि आपने मुझे खाने का टाइम दिया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। 14, okay. So it is a sequence by you can easily generate. Okay, now
व्हाट वी डू, अराइवल हो गया, तो वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव अराइवल ना, तो सी ए टी दैट इज द क्यूमुलेटिव अराइवल टाइम फ्रॉम सम, तो ये तो क्यूमुलेटिव अराइवल ही है ना अपने पास है, अराइवल आप देखो 0, 30, 60 वो क्यूमुलेटिव है ना, यस और नो। यस सर। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम कहाँ से है, इट इज ए, हाँ हमें डिपार्चर टाइम निकालना पड़ेगा, सर्विस टाइम का हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव टीम ऑफ सर्विस टाइम, so this is called departure time equal to cumulative value of service time, ठीक है। तो लेट अस dt हो गया, पहले का सर्विस टाइम कितना है 60, दूसरे का 45 है, तो दोनों का मिला के कितना हुआ, पहला तो 60 मिनट तक बैठेगा ही, दूसरा 100 होगा, तब तक डॉक्टर डॉक्टर कहाँ तक बिजी रहेगा 105 मिनट, डॉक्टर जब तक बिजी है तब तक ही इज नॉट एबल टू सर्व अदर्स, तो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू डिपार्चर टाइम माइनस अराइवल डॉट टाइम, दिस इज दी वेटिंग टाइम, पहले को कितना वेट करना पड़ेगा, 60 मिनट वेट करना पड़ेगा, कैसे, तो गड़बड़ हो गया, पहला पहले कहाँ कुछ वेट कर, एक्चुअली आई थिंक ये सर सेकंड से दे रहा है हमको, हम्म मे बी। तो वेटिंग टाइम तो सेकंड से आएगा ना, सही है, वेटिंग टाइम तो सेकंड से आएगा ना, सर ये भी लास्ट second- वाला भी, सर लास्ट वाले के लिए भी सर यहाँ पे सर 13 आना चाहिए ना, फिर यहाँ पे 14 दे रहा है पूरा किसमें, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम। हाँ तो 13 आएगा ना, सॉरी, -1 रहेगा। ठीक है, एंड सर स्टार्टिंग का सर माइनस हुआ है एक्चुअली सर, लास्ट वाला माइनस होना चाहिए ना 135 लास्ट कैसे स्टार्टिंग। माइनस होगा, पहला पेशेंट कहाँ वेट कर रहा है, अब यहाँ आ जाते वापिस, ये पेशेंट आ गया 0 मिनट में आया, इमीडिएटली डॉक्टर ने उसको तो ले लिया, तो वेटिंग थोड़ा, वो हाँ तो सर्विस ले रहा है ना, तो सर्विस टाइम है, तो पहले पेशेंट का तो वेटिंग टाइम एक्चुअली क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा एग्जैक्ट, यस सर। ठीक है, तो पहले का वेटिंग टाइम आपका 0 आएगा, तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको सम करके पहले वाला निकाल दिया, बिकॉज हाउ मेनी वेटिंग्स, 13 पेशेंट्स आर वेटिंग इन ए क्यू, am I right? So the average waiting time, why remove, कमेंट दे सकते हैं, फर्स्ट पेशेंट is getting service, so no need to wait, okay, so average waiting time, बट सर एक्चुअली वेटिंग टाइम सर अपना स्टार्टिंग 75 से होगा सर, क्योंकि 75 से सर स्टार्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर फर्स्ट वेटिंग मतलब जो फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पेशेंट जो रहेगा उसका मैक्सिमम हमारा कितना, मैक्सिमम 60 मिनट्स है, तो सर सेकेंड वेटिंग टाइम हमारा सर 60 मिनट से स्टार्ट होना चाहिए, 75 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा ना सर। यू आर राइट, वो भी सही है कि फर्स्ट का वेटिंग टाइम है वो कहाँ से, ये फर्स्ट क्या सेकंड का वेटिंग टाइम कहाँ होना चाहिए, जो भी करस्पॉन्डिंग कैटेगरी रहेगी उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन मैक्सिमम सर 60 मिनट ही हो सकता है ना वेटिंग टाइम,
मैक्सिमम 60, लेकिन वो आएगा 30 मिनट, तो 60 माइनस 30, तो आंसर शुड भी 30 आना चाहिए, तो 75 कैसे आ गया? यस सर। राइट। तो इसका मतलब है अभी भी हमारे प्रोग्राम में गड़बड़ है। ठीक है, तो ये राइट। तो यहाँ से पहला यहाँ आ गया, दूसरा कहाँ है? तो अभी ये डिपार्चर टाइम काम ने क्या कर लिया, सर्विस टाइम काम ने क्यूमुलेटिव कर लिया, ये सर्विस टाइम है। तो पहले का सर्व हो रहा है 60, तो 60 को कहाँ से 30 में से बात करना है ना, राइट? 60 को 30 में बात करना है, यस सर। और फिर तो 60 को 30 में से बात करना है। तो क्यूमुलेटिव सम का टाइम कहाँ गया? डिपार्चर टाइम। So this 60 is subtracted from 30, then 150 is from 60. Am I right? ऐसा चाहिए ना मैं? यस सर। और ये 525 तो आएगा ही नहीं फिर। यस सर, वो जाएगा। तो ये डिपार्चर टाइम ये है, तो 14 का तो हम आएगा ही नहीं है, दिस 14 विल नॉट बी देयर। यस सर। सर्विस टाइम विल बी, कहाँ गया सर्विस टाइम? यस। तो एस टी इक्वल टू क्या आएगा? एस टी इक्वल टू सर्विस टाइम का तो सबका जनरेट करना पड़ेगा ना, 45 तो आएगा ना, तो बराबर है। लेकिन जो वेटिंग टाइम, जो डिपार्चर टाइम है, उसमें हमारा एक क्या होगा? माइनस होगा ना, ठीक है ना? डिपार्चर टाइम में कौन सा माइनस होगा? लास्ट वन सर। लेंथ ऑफ एसटी। ठीक है, लास्ट वाला यहाँ चला गया, तो ये कितने रहे? 1 2 3 4, ये 13 रहे। पहला 60 मिनट को डिपार्चर हो रहा है, दूसरा 105 को, तीसरा 120 को, क्योंकि सर्विस होगी तभी डिपार्चर हो गया ना, यस तो सर। ये बराबर है। अब यहाँ पे वेटिंग टाइम आपका क्या है? तो उसमें अराइवल टाइम जो है उसको आपको अराइवल डॉट टाइम इज इक्वल टू अराइवल डॉट टाइम, क्योंकि आपका जो पहला बंदा आया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा अराइवल में, क्योंकि जीरो को हमें माइनस करेगा। क्यों? क्योंकि हमें वेटिंग टाइम निकालना है, तो डिपार्चर हो रहा है और एक्चुअली दूसरा बंदा कब आ रहा है? तो 30 मिनट्स को आ रहा है, तो यहाँ पे ये W2WT ये नहीं आएगा। और यहाँ पे तो हम हटा देते हैं, ठीक है? Departure time, arrival time. So you can see that now arrival time is 30, waiting time, सही है? ये डिपार्चर 60 30, तो 30 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा। फिर दूसरा डिपार्चर हो रहा है 105 को, लेकिन दूसरा कब आ रहा है? 60 को, तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा? 45 मिनट्स। तीसरा डिपार्चर हो रहा है 120 मिनट्स को, लेकिन वो आ कर रहा है, ये चौथा पेशेंट वो आ रहा है 90 मिनट्स को, तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा? 120 माइनस 30। फाइन, सही है ना अभी? यस। And what is the average waiting time per patient? It is a 43 minute. So waiting time, average waiting time of the patient is a 43 minutes. तो आप जो 30 मिनट्स के अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, इज इट द सुटेबल अपॉइंटमेंट? नो। तो आपको कितने वेटिंग, उसको 15 मिनट से ज़्यादा बंदा वेटिंग नहीं करना चाहिए, तो आपको अपॉइंटमेंट कब देना है? 30 मिनट्स की जगह पे आप दो उसको 45 मिनट्स का। इज दैट फाइन? यस।
So now we can print all together. लेकिन गड़बड़ होगी क्या? किसी में कम आएंगे ऑब्जर्वेशन, किसी में ज्यादा हो. Star.frame. Then departure time, सर्विस टाइम आएगा ना, SP. फिर डिपार्चर टाइम, डिपार्चर में हमने माइनस किया है ना, तो डिपार्चर में पहला आएगा 60 मिनट को ही ना. ठीक है, देखते हैं उसका क्या आता है. एंड देन वेटिंग टाइम. एंड इसकी आ रहे हैं कैटेगरी, कैटेगरी में SC. आर्ग्यूम एम्प्लॉय डिफरिंग नंबर ऑफ रोज. ठीक है, क्यों? सर इसमें हम डेटी में कर सकते हैं, जो एक माइनस हुआ है ना सर, तो लास्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं ना. देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं. आता है? ये भी नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि SC में अलग है ना. SC में 14 है. ठीक है, अराइवल टाइम में 13 है. 14 है, तो सबको 14 करना पड़ेगा. C.0 SP में कितना है? 214 है. DT में 13 है सर. ड्यूटी में सर लास्ट में ऐड करना है. लास्ट में डिपार्चर क्या है? नॉट एप्लीकेबल ना. वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम लेट अस सी क्या होता है. कल देखते हैं. एनएस से डबल कोट्स में रहेगा या फिर चलेगा. ओके. अभी ये अराइवल टाइम 0 किसके लिए काउंट करवाने आ रहा है? 60 मिनट उसको टाइम लग रहा है. और डिपार्चर टाइम क्या है उसका? पहले का 60 है. ठीक है, तो वेटिंग टाइम, ये डिपार्चर टाइम पहले का 60 है. वेटिंग टाइम ऑफ फर्स्ट पेशेंट यहाँ क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. वो सेकंड से शुरू होना चाहिए ना वेटिंग टाइम में. ठीक है. ओके ओके सर. तो वेटिंग टाइम पहले पेशेंट का क्या है? C00 0. भी क्यों देना. ठीक है, अब ये नाम बराबर नहीं इसलिए ऐसे ऊपर से आ रहा है. XYZ दे देंगे इसको तो आ जाएगा. दिस इज दी अराइवल टाइम. SC, दिस इज दी डिपार्चर टाइम. दिस इज दी वेटिंग टाइम. ठीक है, आ गया. अभी देखो, अभी वेरीफाई करते हैं. फर्स्ट बंदा क्लिनिक में आ रहा है डेंटिस्ट के पास 8 बजे. किसके लिए? इज गोइंग फॉर दी क्राउन ऑफ टूथ. हाउ मच डॉक्टर टाइम टेक्स? 60 minutes to serve this patient. So first person is departure at 60 minutes, but there is no waiting for them. Okay. Second patient enter at the 30 minutes, coming for the filling. Doctor required 45 minutes. So total required time to serve these two patients is 105. So how much time the second patient has to wait? Because patient 30 minutes में आ गया, 60 minus 30, it is a 30. Okay. Yes. So 30 minutes second patient has to wait. Third patient came on the 60 minutes.
for the cleaning. Doctor require 15 minutes. So to serve all three patients, how much time required to doctor? It is a 120 minutes. So how much the patient has to wait? 120 minus 90, because आगे वाले को 30 minutes already wait करना है, तो 13 plus 15, it is a 45 minutes. Okay, am I right? अभी यहाँ से चौथा आ रहा है 90 मिनट्स को एक्सट्रैक्शन, तो इन सब का कितना है? 165 मिनट होता है. 165 में से 90 मिनट, तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा? यहाँ गड़बड़ है? 45. हैं? नहीं नहीं सर, कुछ गड़बड़ नहीं है? 120 नहीं सर, नहीं सर, 165 में से 120 माइनस होगा ना. हैं? सर ये 120 120 में से 90 माइनस करेंगे तो 30 आएगा. 120 में से 90, तो 30 मिनट वेट करना पड़ेगा उसको. Yes, sir. और उसको सर्व करेंगे तो 165, तो नेक्स्ट पेशेंट को कितना वेट करना पड़ेगा? 45 मिनट्स. 160 माइनस 120, तो 45 मिनट्स. अब ऐसे चलते चलते ये बंदा है 360 मिनट्स को आ रहा है, इसको क्या चाहिए? फिलिंग करवाना है. 45 मिनट्स का टाइम है और डॉक्टर 480 मिनट्स को फ्री हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये आ रहा है, तो इस बंदे को कितना वेट करना पड़ेगा? इसको सर्व देंगे तब 48 मिनट हो रहा है, लेकिन अभी आगे वाला चालू है, डॉक्टर इज इन द बिजी, और 435 माइनस 360, तो उसको 75 मिनट वेट करेगा, उसके बाद सर्विस मिलेगा. उसके बाद आपके पास यहाँ पे 45 ऐड करेंगे तो 480. अब नेक्स्ट पेशेंट जो 14 का आ रहा है वो कौन सा है? 390 मिनट्स को आ रहा है. ठीक है, लेकिन डॉक्टर बिजी है, तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा? 75 मिनट्स. इज इट? नो, दिस इज द वेटिंग टाइम. उसको 90 मिनट्स वेट करना पड़ेगा. और फिर डिपार्चर कब होगा? एक्चुअली ये ऐड करेंगे तब होगा ना. डिपार्चर में ये हमने माइनस गलत किया है. डिपार्चर में माइनस क्यों करना है? ये प्लस हो गया. डिपार्चर ये 45 मिनट के बाद होगा, तो डिपार्चर में अपना एक कुछ ऐड करना है. यहाँ पे हमने डिपार्चर में क्या लिखेंगे? एन लिखा है ना, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? पास 70 होगा. 535 होगा. 525. ठीक है. ठीक है. प्लस क्या करेंगे? 45 क्या है? एसटी ऑफ dt ऑफ लेंथ dt. तो लेंथ dt जो है उसका निकाल के, सपोज वो 13 आ रहा है, तो 13 ऐड करेगा, उसके अंदर क्या करेगा? ये लेंथ ऑफ एस टी, तो ये ना बोल रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है. स्पेलिंग मिस्टेक है सर. ठीक. अगर सही है, यू आर राइट. ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? अपना तो कैलकुलेशन हो गया ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं.
कितने बजे? 6 बज गए? नहीं सर 5। अच्छा, मेरे सामने रूम बंद होने लगी इसलिए मैंने कहा। तो आउटपुट को डेकोरेट करना, वो कैसे करना है वो सीखना है, तो ऐसे करेंगे तो हो जाएगा डेकोरेट, उसमें क्या है। प्रोग्रामिंग इज नॉट द इजी जॉब। आज खाना खा लिया ऐसा नहीं है, several time you have to। ठीक है, अब सही है। देखिए, पहला पेशेंट आ रहा है, सर्विस ले रहा है, लेकिन उसको वेट नहीं करना है। दूसरा पेशेंट 30 मिनट्स को आ रहा है, तो उसको कितना वेट करना है? 30 मिनट्स को। क्यों? क्योंकि पहला 60 मिनट तक सर्विस ले रहा है। तीसरा पेशेंट 60 मिनट को आ रहा है, लेकिन डॉक्टर बिजी है 105 मिनट, तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा? 105 माइनस 60, मतलब उसको 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। नाउ इट इज फाइन। ओके, और वेटिंग टाइम हमेशा क्या होता है? सेकंड पेशेंट से ही होता है ना, इसलिए हमने एवरेज वेटिंग टाइम उसके हिसाब से निकाला है। इज दैट क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चंस? एनीवन? आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं होते? अच्छी बात है।